Hello everyone, welcome to Anurag Makeup Mantras, one more live session. Today you are with Payal Shah. I am from Soare Hair and Makeup Studio. So before starting, I would like to thank Anurag ji for giving us this opportunity to be in front of you and showing some live demos about haircuts and how to take the haircut to a next level. From a basic haircut, we are going to go to advanced, and from that, how do we point cut and style the hair, the entire finished look. So before starting, I would like to tell you something about myself. I am Payal Shah and I have been into hairdressing since almost 5 to 6 years. I have done my training from Beeblant Academy, and then I did my advanced training from Vidal Sassoon Academy, London. And today here now I have my own hair studio at Juhu, and it is known as Soare Hair and Makeup Studio. But Anurag ji and me, we are one team. Today whatever I am here is because of his guidance, and he supported us, and today he's given me this opportunity to show you guys something, share the knowledge that I have. So let's start. First we're going to start with a basic one length, which is the base for each and every haircut. But before doing that, all we need is a clean canvas. The hair needs to be perfectly clean and conditioned. If you do not shampoo the hair properly, you are not going to get your finished look, and you are not going to achieve the result that you are looking at. So today, a client with us is Neha, and her prerequisite is she wants to maintain her length, but at the same time she wants a lot of bounce and movement. Right now, as we can see, her hair is straight and fine. So this is like very limp. It doesn't have movement, it doesn't have life. So all we're going to try and achieve is we're going to give her more longer layers, and along with that, something that gives her a lot of volume. Layers in the sense, we're not going to make her hair look very fine when she tries a ponytail. We're going to try and add a lot of volume to this. So to begin with one length, we need to do a 4 sections. So this section has to be from crown till the top of the ear. Likewise on this side. सेक्शंस क्लीन और नीट होने चाहिए, सो दैट इज वो हमें ही हेल्प करेगा. बिकॉज अगर सेक्शंस आर मेस्ड अप तो यू विल लूज योर गाइड, और आपको ही बहुत दिक्कत होगा कि कैसे आगे आपको हेयरकट कंटिन्यू करना है. सो योर सेक्शंस फर्स्ट थिंग इज हैज टू बी वेरी नीट एंड वेरी क्लीन. थोड़ा स्लो जाएगा तो चलेगा, बट वी हैव टू बी प्रिसाइज. Divide the hair into 2. And start with 1 inch sections. बहुत thick और बहुत पतले भी नहीं लेने हैं. We have to take medium size.
सो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है और कट करने से पहले हमें क्लाइंट को दिखाना है कि हम कितना कट कर रहे हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच. Accordingly, we will go ahead. Is this okay? हमेशा कट करने से पहले हमें सेंटर के सेक्शन को पहले कट करना है, so we can balance the left and right properly. और आप अपने कोम से ऐसे चेक कर सकते हैं, किधर भी अगर अनइवन लगे तो यू कैन ऑलवेज गो बैक इनटू इट एंड करेक्ट इट. सो दिस इज अ बेस. नाउ ये हम हमारी गाइड से पूरा हेयर फॉलो करेंगे. Second section also has to be approx 1.5 inch depending on the thickness of the client's hair. अगर क्लाइंट के बाल बहुत थिक है तो हम थोड़े पतले सेक्शन भी ले सकते हैं. अगर क्लाइंट के हेयर पतले हैं तो हम थोड़े मोटे सेक्शन भी ले सकते हैं. ये हमें अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है. लेकिन वी हैव टू मेक श्योर सेक्शन इतना होना चाहिए कि हमें हमारी गाइडलाइन दिखनी चाहिए. A guide has to be visible. अभी वापस हम सेंटर में से स्टार्ट करेंगे. गाइड को फॉलो करते हुए ये सेक्शन भी कट करेंगे. देन लेफ्ट और फिर राइट और उस पूरा लाइन बैलेंस करना है. अगर आपको लाइन का जजमेंट ऐसे फिंगर से डिफिकल्ट होता है तो वी कैन कोम करके भी हम ऐसे कट कर सकते हैं. ये देखिए, इफ यू सी इट इज अनइवन देन ऑटोमेटिकली वी विल गेट व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज अ काइंड ऑफ, इसे चेकिंग भी बोल सकते हैं फॉर योर वन लेंथ. Again we start center. Guide को ध्यान में रखते हुए we just have to follow that and left and right फिर. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, the section that we get to cut is it keeps decreasing because most of the clients के बाल में पहले से ही layers रहते हैं. So we have to keep that in mind कि हमें वो dead ends भी निकालने हैं. तो keep your one length accordingly कि पूरे hair के dead ends निकल जाए. Gives a fresh new look. ये देखिए, we are done with one length at the back. Now ये ही हम sideways follow करेंगे. साइड का सेक्शन हम ऐसे वर्टिकली लेंगे.
follow the straight line. अगर किसी को deep U चाहिए या deep V चाहिए, so that हम अपने fingers का angle change कर सकते हैं उसके लिए. For example, अगर उनको deep U चाहिए, so I can cut all this and give a deep U to client. But right now हमें deep U नहीं करना है, हमें एक straight follow करना है. So I am not going to cut that और हम लोग ऐसे straight line cut करेंगे. Similarly, we will follow the same thing on the other side. So now we are done with one length. ये हमारा एक बेस तैयार हो गया है to prep any of your haircut. अगर आपको सिर्फ फेस फ्रेमिंग भी करना है तो भी this is a prerequisite. अगर आपको एडवांस लेयर्स भी करने हैं तो भी this is a prerequisite. So all you need to do is इसको मास्टर करना है. One length has to be perfect. अगर आपका one length ठीक हो गया तो आप कोई भी haircut मिक्स और मैच करके अपने क्लाइंट को कर सकते हैं. So now let's start with inversion advanced layers. Again we will divide the hair top of the box till the middle of the ear. ये सेक्शन को हम क्लिप करके अलग कर देंगे. Similarly ये साइड भी वही करेंगे. Top of the ear till the crown, middle of the crown. अभी इन्वर्टेड लेयर्स स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट वी नीड इज आवर मेन गाइड. तो गाइड अचीव करने के लिए वी नीड टू डू इज टेक अ 1 inch thick vertical section. ये हमारा फर्स्ट गाइड के लिए 1 inch थिक वर्टिकल सेक्शन है. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे सेक्शंस दे हैव टू बी वेरी नीट एंड वेरी क्लीन एंड वेरी प्रिसाइज, तो ही हमें हेयरकट करने का मजा आएगा एंड वी विल अचीव द रिजल्ट दैट वी वांट. अभी the layers that we decide वो डिपेंड करते हैं हमारे हैंड के एंगल से. नाउ इफ शी वांट्स ज्यादा लेयर्स चाहिए तो हैंड हैज टू बी 90 डिग्री. जितना हैंड फ्लैट रहेगा उतने लेयर्स मोर प्रोमिनेंट रहेंगे. अगर हमारे हैंड ऐसे डायगोनल है तो लेयर्स की लेंथ लंबी होती जाएगी और वो थोड़े कम प्रोमिनेंट लगेंगे. दे विल बी लाइक मिक्स्ड इन योर नेचुरल लेंथ. अभी उनको लेंथ मेंटेन करनी है और उनको इतना शी ऑलरेडी हैज लिम्प काइंड ऑफ अ हेयर, बहुत फाइन हेयर है, तो वी कैन नॉट गिव हर वेरी प्रोमिनेंट लेयर्स, अदरवाइज उनकी पोनी बहुत पतली लगेगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गिव हर लिटिल इन्वर्टेड लेयर्स.
फिंगर का एंगल इज शॉर्ट टू लॉन्ग फॉर इन्वर्टेड लेयर्स। ये देखिए हमारा फर्स्ट लेयर इधर बैठेगा, तो इवन इफ शी टाइज अ पोनी टेल, उनका पोनी बहुत पतला नहीं लगेगा। इट विल लुक नाइस एंड फुलर एंड लॉट ऑफ मूवमेंट। ये हमारी गाइड है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द प्रीवियस लेयर। उसी पॉइंट को फॉलो करते हुए हम आगे के लेयर्स कंटिन्यू करेंगे। जो लेंथ नीचे गिर रही है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, दैट इज योर मेन लेंथ, तो हमें उसे कट नहीं करना है। तो इट इज एब्सोल्युटली ओके अगर वो लेंथ गिर रही है, तो देन वी कैन रेक्टिफाई एवरीथिंग लेटर। जो जितने बाल फिंगर्स में फिट हो रहे उतने को ही कट करना है, हमें जबरदस्ती इसे टाइट करके पुल करके ऐसे कट नहीं करना है, अदरवाइज आप अपना शेप लूज कर देंगे। तो ये हमारी वर्टिकल गाइड का फर्स्ट सेक्शन ऑफ लेयर्स। नाउ दिस विल बी द गाइड फॉर आवर एंटायर हेयर कट। नाउ सेकंड सेक्शन हम फॉलो करेंगे इज लाइक अ पाई सेक्शन। ऑरेंज कैसे पील करते हैं, वैसे इट इज गोइंग टू बी लाइक अ पाई सेक्शन, लिटिल डायगोनल। ये वर्टिकल नहीं है। अगेन ये सेक्शन भी अप्रॉक्स हाफ एन इंच या 1 इंच, डिपेंड ऑन योर क्लाइंट्स थिकनेस ऑफ द हेयर। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज ये जो हमारी गाइड थी वर्टिकल, उसको हमें पूरा नहीं लेना है। वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2। आधे को इधर फिक्स कर देना है सो दैट इट इज आउट ऑफ द वे, और आधी गाइड हमें इसमें लेनी है। नाउ अगेन subdivide your pie section into 2 or follow the guide of the previous. See how beautifully the layers sit. We do not have to cut the main length. मैं ये रिपीट कर रही हूँ बिकॉज गलती से भी अगर वो कट हो गया तो हमें क्लाइंट का पूरा we have to go back into the entire haircut और हमें पूरा 1 लेंथ वापस करना पड़ेगा because you will lose the shape. Now similarly for the next pie section we will divide this guide into half, clip this section away और इसे हम गाइड लेके दूसरे सेक्शन के साथ फॉलो करेंगे। पाई सेक्शन, clip this away. So all we have to work with is this. Rest everything is out of our way. Nothing is going to come in between. Subdivide the pie section. Pull it up 90 degree. Finger angle is short to long. ये जो गाइड हम डिवाइड कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग द एंटायर गाइड, दैट इज कॉल्ड एज रनिंग गाइड और ट्रैवलिंग गाइड। ये करने से हमारे लेयर्स ज्यादा विजिबल होते हैं। इफ वी कीप अ स्टैग्नेंट गाइड और सब सेक्शंस हम यही गाइड पे पुल करके कट करेंगे तो वी विल गेट लॉन्गर लेयर्स, मोर लॉन्गर लेयर्स, बट राइट नाउ
हमें जिस टाइप के लेयर्स चाहिए उसके लिए वी नीड इज अ रनिंग गाइड और अ ट्रैवलिंग गाइड. So the guide changes with every section. It is not the same guide. Again, this is your pie section. उसको divide करेंगे into half. This is your new guide. The rest of the section we are going to clip it away and merge it with the remaining section. तो ये हमारा ये साइड का लास्ट सेक्शन है. देन वी विल स्विच टू दिस साइड. सब डिवाइड योर पाई सेक्शन. हैंड्स अप 90 डिग्री, एल्बो अप, फिंगर इज शॉर्ट टू लॉन्ग. अगर आपके एल्बोज ऐसे ड्रूपिंग रहेंगे नीचे तो आपका ये एंगल भी चेंज हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, एल्बो अप, हैंड्स अप 90 डिग्री. So this is what we have achieved with half of our head at the back. Now यही चीज similarly we are going to follow on the right hand side. Divide your guide into half. Clip this section away. Now since आप लोगों ने देख लिया कि what is the procedure we are following this side, if you all have any questions we can take it now. By the time I can complete this. Now again, subdivide your section. पाई सेक्शन करना है हमें. लाइक ऑरेंज पील कैसे रहते हैं वही हिसाब के सेक्शंस हैं. वर्टिकल सेक्शन नहीं है, मिडिल, डायगोनल. नहीं ना? या कंफर्टेबल, विजिबल. ये हमारा सेकेंड पाई सेक्शन. सब डिवाइड करेंगे इसको. $90 degrees up. जैसे ही हम ये साइड आएंगे द एंगल ऑफ आवर एल्बो विल चेंज. ये साइड हमारा एल्बो ऊपर रहता है. द मोमेंट वी स्टार्ट इन द राइट साइड द एल्बो का एंगल नीचे हो जाएगा. ओनली देन यू विल गेट शॉर्ट टू लॉन्ग. Someone has asked a question. Yes, please. If we cut the hair, it is necessary to wet the whole hair. Yes, that is the most important. Very good question. We should never cut dry hair. हमें dry hair कभी नहीं कट करना. Hair अगर wet रहेगा तो ही हमें precision मिलेगा. Exact hair cut तभी मिलेगा जब भी हमारे hair completely wet है. Dry hair is a no-no. कभी dry hair कट नहीं करने. सिर्फ चेकिंग, पॉइंट कटिंग और डीप पॉइंट कटिंग के लिए हमें ड्राई हेयर, ब्लो ड्राई के बाद करेंगे. बट अदरवाइज ये पूरा हेयर कट हमें वेट हेयर में करना है. अगर आपको लग रहा है कि आपका सेक्शन ड्राई हो रहा है तो आप वापस वाटर स्प्रे करके उसको गीला कीजिए एंड देन गो अहेड विथ योर हेयर कट. Again,
इसे हम हाफ करेंगे टू गेट अ न्यू गाइड, रनिंग गाइड बोलो या ट्रैवलिंग गाइड. क्लिप दिस अवे, पाई सेक्शन करके सब डिवाइडर है. Subdivide into two, 90 डिग्री ऊपर, एल्बो नीचे, फिंगर शॉर्ट टू लॉन्ग. ये सभी पॉइंट्स हमें अपने माइंड में कंटिन्यूसली बोलने चाहिए. सो वी गेट, हमें लाइक यू नो वी गेट थरो विथ इट. ये हमें भूलना नहीं है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. योर एंगल, योर हैंड, योर एल्बो, इससे ही पूरा हेयरकट का प्रिसिशन डिसाइड होता है कि आपका हेयरकट कितना राइट जा रहा है. Divide your guide, take your next pie section. Clip this away and subdivide. Elbow down, fingers short to long, 90 डिग्री. मैं ये एवरी सेक्शन में रिपीट कर रही हूँ बिकॉज मैं ये स्ट्रेस नहीं कर सकती कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एनी हेयर ड्रेसर. ये बेसिक है जो सबको बाय हार्ट होने चाहिए. अभी हम हमारे लास्ट पाई सेक्शन में पहुंचे हैं. अगेन हमारा न्यू गाइड एंड लास्ट पाई सेक्शन फॉर द बैक ऑफ द हेड. इसे वापस सब डिवाइड करेंगे. नेवर, कभी भी हमें ये पूरा एक साथ लेके कट नहीं करना है. उससे लेयर्स की एंगल और लेयर्स की पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी. कर्ली है. वी कर्ली हेयर के लिए भी हम सिमिलर लेयर्स हेयर कट कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स उनके लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर. एंड कर्ली हेयर में हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें बहुत डीप लेयर्स नहीं देने हैं, बिकॉज कर्ली हेयर का नेचर है जैसे ही वो ड्राई होते हैं वो स्प्रिंग अप होते हैं. सो राइट नाउ अगर वो इतने दिखेंगे, ड्राई होने के बाद वो उसके हाफ दिखेंगे. तो हमें ये सब माइंड में कैलकुलेट करना है कि इनके नेचुरल है, ड्राई हेयर कैसे है. सो डू नॉट गिव शॉर्ट लेयर्स कर्ली हेयर में. ऑलवेज कीप द लेंथ. और वन मोर थिंग, कर्ली हेयर के लिए हमें फ्रंट के जो फेस फ्रेमिंग लेयर्स है जो हम दिखाएंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, वो हमें शॉर्ट नहीं करने. उनका मिनिमम लेंथ चिन होना चाहिए. हमें कर्ली हेयर में कभी भी नोज लेंथ या आईब्राउ लेंथ या लिप लेंथ नहीं करना है. फर्स्ट लेंथ शुड बी योर चिन लेंथ, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग अप होके नोज लेंथ हो जाएगा. So now we are done with the back of the head. ये देखिए लेयर्स भी ऐड हो गए, मूवमेंट भी है, एंड उनके बाल जो लिम्प लग रहे थे वो अभी नहीं लग रहे. देयर इज लॉट ऑफ लाइफ इनसाइड. ब्लो ड्राई किए बगैर भी उनको नेचुरली फ्लिप करने से ही उनके लेयर्स दिखेंगे. काम करता करता मूल रुकी नहीं जाए, टाइम जाई રહ્યો છે.
अभी मेन क्वेश्चन फ्रंट सेक्शन के लिए ये जो हमारा गाइड था वो ही गाइड हम फ्रंट गाइड के लिए फॉलो करेंगे। तो इतने पार्ट को लाइक 1 इंच जितना जस्ट सेपरेट योर हेयर और बाकी के हेयर को टाई करके हम अलग से टाई करके रखेंगे सो दैट इट डजंट कम इनटू आवर वे। Which is the haircut you are doing? दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, एडवांस इन्वर्जन लेयर्स, इन्वर्टेड लेयर्स भी बोलते हैं इसको। नाउ अभी फ्रंट के लिए भी हम 1 इंच जितना सेक्शन सेपरेट करेंगे सो दैट वो हमारे फ्रंट सेक्शन का गाइड बनेगी। अगेन इसको वापस सब डिवाइड करेंगे एंड फॉलो योर गाइड। दिस इज आवर गाइड। लेकिन उनको फ्रंट में अगर इतना शॉर्ट नहीं चाहिए सो व्हाट वी कैन डू इज शॉर्ट टू लॉन्ग। अगेन द फिंगर्स शॉर्ट टू लॉन्ग। इससे क्लाइंट की हेयर की लेंथ कम नहीं हो रही है, इट इज जस्ट दैट हम लेयर्स ऐड कर रहे हैं उनके बाल में। तो अगर कोई क्लाइंट आपका पैनिक करेगा कि अरे इतना सारा लेंथ निकल गया, तो आप उनको समझा सकते हैं कि ये आपका लेंथ कट नहीं हो रहा है, दिस वी आर जस्ट एडिंग लॉट ऑफ मूवमेंट एंड लेंथ। This cut can be done for curly hair. Yes, absolutely. This cut can be done for curly hair. भाभी खुल गया नहीं ना। This cut can be done for curly hair. But सिर्फ जैसे मैंने बोला we have to keep in mind कि उनकी लेंथ क्या है। नाउ फ्रंट सेक्शन में हम लोग वही पाई सेक्शंस फॉलो करेंगे, बट दिस टाइम ये जो हमारा सेंटर ऑफ द हेड है उधर से पॉइंट लेके अ डायगोनल सेक्शन, डायगोनल सेक्शन डिवाइड। अभी इसमें एक चेंज है, इन द फ्रंट हम लोग गाइड डिवाइड नहीं करेंगे, वी विल कीप दिस स्टेशनरी गाइड। मतलब यही गाइड से हम पूरा लेफ्ट साइड और पूरा राइट साइड फॉलो करेंगे, बिकॉज हमें आगे के लेंथ और लेयर्स ज्यादा चाहिए पीछे से। सो कीप इन माइंड ये रनिंग गाइड नहीं है, दिस इज अ स्टेशनरी गाइड। अभी क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या ये कर्ली हेयर में सेम हेयर कट कर सकते हैं? कर सकते हैं, थोड़ी लेंथ ज्यादा रखें, लेयर्स की लेंथ इससे थोड़ी हम ज्यादा रखेंगे। ज्यादा रखने का मतलब हमें हमारी फिंगर्स को एडजस्ट करना है लेयर्स के लिए। थैंक यू मैम। सेकेंड पाई सेक्शन, गाइड सेम रखेंगे, हम ट्रैवल गाइड नहीं करेंगे इसमें, स्टेशनरी गाइड, फिंगर शॉर्ट टू लॉन्ग। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लाइंट को अगर पैनिक करे तो बोलिएगा कि आपके लेंथ कम नहीं हो रही है, ये सिर्फ लेयर्स ऐड हो रहे हैं। नाइन्टी डिग्री, फिंगर शॉर्ट टू लॉन्ग और स्टेशनरी गाइड। ये हमें एवरी टाइम फॉलो करना है, माइंड में आपको बोलना है, सो दैट आप कोई मिस्टेक ना करें। अभी लास्ट सेक्शन है ये साइड का।
90 डिग्री अप, फिंगर शॉर्ट टू लॉन्ग। जो बाल नेचुरली गिर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज वो मेन लेंथ है अपना। अच्छा, अभी और एक क्वेश्चन है, हाउ टू होल्ड स्टेशनरी गाइड फॉर थिक हेयर। और स्टेशनरी गाइड फॉर थिक हेयर वी हैव टू, उसमें हमें पूरे बालों को वी हैव टू कीप कोमिंग। जितनी बार आप उसको अच्छे से कोम करोगे तो आपका ग्रिप उतना स्ट्रांग होएगा। अगर उनके बाल थिक है, इनके जैसे सिल्की और थिक है, मतलब इनके सिल्की है बट अगर ये थिक भी हुए तो हमें उसको कंटिन्यूस कोम करना है और वेट रखना है। वेट रहेंगे तो आपका ग्रिप अच्छा रहेगा। अगर ये बाल सिल्की है और आपका ग्रिप लूज है और ड्राई है तो वो गिर ही जाएंगे। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज वेट रखना है बालों को और कंटिन्यूसली कोम करना है। दैट इज फॉर स्टेशनरी गाइड इन थिक हेयर। अगेन पाई सेक्शन। अच्छा मैम ने जो वो साइड के लिए सेम ये साइड के भी सेक्शन ले रहे हैं, हाँ। तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैम आपने जो साइड से लिए वही ये साइड भी ले रहे हैं ना आप सेक्शन? सेम सेक्शंस, पाई सेक्शंस, 90 डिग्री अप, फिंगर शॉर्ट टू लॉन्ग। सेक्शंस और गाइड दोनों साइड सेम रहेगी, इट डजंट चेंज। जो लेफ्ट साइड करेंगे वो ही हमें मिरर इमेज राइट साइड करना है। अच्छा मैम, सिमिलर सेक्शन थिक हेयर में भी वही सेम टेक्निक से फॉलो करने का है? यस एब्सोल्युटली, पर थिक हेयर है तो आप अपने सेक्शन की साइज थोड़ी छोटी रख सकते हैं, पतले सेक्शंस ले सकते हैं, तो आपकी ग्रिप और आपके सेक्शंस नीट रहेंगे और आपको इजी रहेगा वो करने को। कीप योर सेक्शंस थिन, हाफ एन इंच कीजिए। अगर इसमें मैं 1 इंच ले रही हूँ तो थिक हेयर में आप हाफ इंच कर सकते हैं। मैम ये कटिंग के बाद हेयर ग्रोथ सेम रहेगा? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट हेयर कट के बाद हेयर ग्रोथ इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज हमारे जो डेड एंड्स है, स्प्लिट एंड्स है, वो सब निकल जाता है। सो इसीलिए तो बोलते हैं कि एवरी 3 months और 4 months यू नीड टू, आपको ट्रिम या हेयर कट एक करवाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी। इट इज नॉट कि आपको सिर्फ फैशन के लिए करना है, ये आपके लिए एक नेसेसिटी है कि जितनी आप रेगुलरली ट्रिम करेंगे बाल तो आपके स्प्लिट एंड्स और डेड एंड्स निकलते जाएंगे, तो हेयर ग्रोथ ऑफ कोर्स आपका बेटर हो जाएगा। मैम ये फिर से आप हेयर कट का नाम बोलेंगे? एडवांस इन्वर्जन लेयर्स, इन्वर्टेड लेयर्स भी बोल सकते हैं इसको। ये देखिए, जस्ट नॉर्मली विदाउट ब्लो ड्राई ऑल्सो, अगर ये डेली में ऐसे ही शैम्पू करके टॉवल ड्राई करके छोड़ेंगे, फिर भी यू सी द मूवमेंट, सी द लाइफ इन अ हेयर। बिल्कुल अभी लिम्प और पतले नहीं लग रहे। एट द सेम टाइम हम अगर पोनी करेंगे तो भी उनकी पोनी फुलर लग रही है। इट इज नॉट लुकिंग दैट पॉइंटेड काइंड ऑफ अ थिंग। ये देखिए नाउ, अभी मैंने आपको एक मेन हेयर कट दिखाया विच वाज 1 लेंथ, उस पे हमने इन्वर्टेड लेयर्स किए। नाउ इसी में ही वी कैन स्टिल गो अहेड टू मोर एडवांस लेवल और उनको आगे से भी फेस फ्रेमिंग कर सकते हैं। दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ अ हेयर कट विच आई एम कंबाइनिंग इन दिस लुक। सो दिस इज आवर थर्ड लुक जो हम स्टार्ट करेंगे, उसे बोलते हैं फेस फ्रेमिंग लेयर्स। उसके लिए मिडिल पार्टिंग करना है। अगेन टॉप ऑफ योर हेड टू सेंटर ऑफ द ईयर, टॉप ऑफ द ईयर, उतना सेक्शंस हमें सेपरेट निकालना है। मैम इसमें चॉपिंग या नोचिंग दे सकते हैं? दैट इज आपका मतलब पॉइंट कटिंग से है? हाँ। पॉइंट कटिंग हर हेयर कट में देना है। एवरी हेयर कट यू हैव टू डू पॉइंट कटिंग, लेकिन वो हम ब्लो ड्राई के बाद करेंगे चेकिंग के साथ।
हमें हर हेयर कट चेक भी करना है और पॉइंट कट भी करना है, लेकिन आफ्टर द ब्लो ड्राई। ये देखिए, टॉप ऑफ द हेड टू टॉप ऑफ द ईयर सेक्शन कंप्लीटली दोनों साइड निकाल के ये सेक्शन को हम फ्लिप कर देंगे तो इट इज आउट ऑफ आवर वे। अभी फॉर फेस फ्रेमिंग लेयर्स हमें क्लाइंट को अपने तरफ टर्न करना है। और हमेशा हमें केप क्लाइंट का ऐसे ही रखना है फेस फ्रेमिंग में, बिकॉज ये सब बाल क्लाइंट के ऊपर गिरेंगे, तो उनके हाथ और एवरीथिंग। एंड वन मोर थिंग, यू डू नॉट हैव टू अनक्रॉस। यस, फेस फ्रेमिंग में फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ वन हॉरिजॉन्टल सेक्शन इन द फ्रंट। अगर फ्रंट हेयर अपने को शॉर्ट चाहिए तो ऑफ कोर्स हम क्लाइंट की मर्जी के हिसाब से वी कैन आस्क देम कि आपको आगे का कितना शॉर्ट चाहिए, कितना लेंथ चाहिए। तो कट करने से पहले हमेशा हमें क्लाइंट को पूछना है। मैं भी इनको पूछ के ही फ्रंट का फर्स्ट सेक्शन कट करूंगी। थैंक यू मैम। ये एक 1 इंच जितना सेक्शन निकाल के दोनों साइड फ्लिप द रेस्ट ऑफ द हेयर बैक। ये हमारे फेस फ्रेमिंग लेयर्स का फर्स्ट सेक्शन है। चिन लेवल इज ओके फॉर यू। इनको बहुत शॉर्ट नहीं चाहिए, इसके लिए हम उनका फर्स्ट लेवल चिन लेवल रखेंगे। मैम गाइडलाइन क्लाइंट को पूछ के ही लेने का है ना, फर्स्ट गाइडलाइन। हाँ, जैसे इनको लॉन्ग चाहिए, इसके लिए मैंने उनको पूछ के चिन लेवल कट किया है। अगेन 1 इंच जितना सेक्शन लेना है, डिपेंडिंग क्लाइंट की हेयर लाइन कितनी थिक है। अगर आगे ज्यादा थिक बाल है तो हम 1/2 इंच लेंगे, अगर हेयर लाइन वीक है तो हम 1 इंच ले सकते हैं। ये देखिए, नाउ ये हमारा चिन लेवल का गाइड है। विद दैट हमें एंगुलर फेस फ्रेमिंग लेयर कट करना है। ऐसे स्ट्रेट नहीं करना, वी हैव टू डू एन एंगुलर कट। ये देखिए, so this is how it will fall। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इधर we have little weak hairline, तो हम ज्यादा बड़ा सेक्शन लेंगे so that उनका वो कवर हो जाए। Again, angular section, follow the guide। और एंड में ये पूरा चेक होगा पॉइंट कटिंग के साथ। सिमिलर दूसरे साइड भी हमें वही फॉलो करना है। दिस इज आवर गाइड, अ फर्स्ट लेंथ एंगुलर करके जस्ट फॉलो दैट पॉइंट। मैम अगर कर्ली हेयर है तो क्या यही फ्रंट कट चलेगा? कर्ली हेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसका लेंथ हम शॉर्ट नहीं करेंगे। आगे का चिन से भी लंबा रख सकते हैं एंड देन वी कैन फॉलो द सेम फेस फ्रेमिंग लुक फॉर दैट कर्ली हेयर आल्सो। थैंक यू मैम। फिर हमें ऐसे विजुअली अपना बैलेंस चेक करना है दोनों साइड, कि एक शॉर्ट या लॉन्ग नहीं लगे, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ आवर एंटायर फेस फ्रेमिंग हेयर कट।
नाउ सेकेंड सेक्शन हम वैसे ही लेंगे 1 इंच, रेस्ट ऑफ द हेयर पीछे क्लिप कर देंगे। सो यूजुअली फेस फ्रेमिंग हेयरकट में हम मैक्सिमम 5 to 6 सेक्शंस कर सकते हैं, और एल्स मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। अगर एक ही करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो फ्रिंज जैसा लुक आएगा। सो फॉर फेस फ्रेमिंग मिनिमम इज 2 सेक्शंस एंड मैक्सिमम इज एक्चुअली नो लिमिट। आप पीछे तक भी लाइक 7-8 सेक्शंस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। अभी हमें पीछे की गाइड क्लियर दिख रही है, सो वी विल जस्ट फॉलो द गाइड नाउ। बहुत थिक करने से भी फेस फ्रेमिंग लेयर्स का लुक नहीं आएगा, सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे सेक्शंस बहुत थिक नहीं होने चाहिए। मैम, अगर फ्रंट में हेयर कम हो तो कौन सा कट देंगे? तो हमें ऐसा कट क्लाइंट को देना है जिससे उनका टॉप ऑफ द हेड या क्राउन थोड़ा फुलर लगे, ऊपर थोड़ा वॉल्यूम बढ़े। वैसा उसे वी टेक्निक बोलते हैं, हॉर्सशू टेक्निक बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कट्स उसके लिए, जिससे ऊपर क्राउन के एरिया में यू विल गेट लॉट ऑफ वॉल्यूम। मैम, आप ऑनलाइन सिखाएंगे? एनी कोर्सेज या क्लासेस के लिए आप अनुराग जी से यू कैन गेट इन टच विथ हिम। वी आर वन टीम। तो जैसे ही एक बैच फॉर्म होगा, आई डोंट माइंड टीचिंग ऑनलाइन ऑल्सो। मैम, पॉइंट के लिए टेक्सचराइजिंग दे सकते हैं आगे लेयर्स में? एब्सोल्युटली, वो हम देंगे। अभी ये उनका हम 3rd सेक्शन कर रहे हैं फेस फ्रेमिंग का। फॉर हर हम लोग 4 सेक्शन करेंगे फेस फ्रेमिंग लुक के लिए। सो दिस इज अ 3rd वन नाउ। मैम, 12 इयर्स ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल है, उसका फॉरहेड बड़ा है, तो फ्रंट कटिंग कैसे देंगे? फोरहेड बड़ा है, डिपेंड्स उसका हेयर टेक्सचर कैसा है, स्ट्रेट है कि कर्ली हेयर है उनके। अगर उनके स्ट्रेट हेयर है इनके जैसे या वेवी भी है, तो फोरहेड कवर करने के लिए हम उनका फर्स्ट गाइड वी कैन टेक इज हम नोज लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनको एक ऐसे बैंड जैसा हो जाएगा, तो जिससे उनका थोड़ा फोरहेड कवर हो जाएगा। इट विल नॉट लुक वेरी बिग, प्रोमिनेंट नहीं लगेगा उनका फोरहेड। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज थोड़ा जरा जोर से बोलेंगे? या श्योर। मैंने वो कहा कि अगर 12 ईयर ओल्ड के हेयर टेक्सचर कर्ली है, तो हम उनको बैंग्स या फ्रिंजेस नहीं दे सकते फोरहेड कवर करने के लिए। लेकिन अगर उनके बाल स्ट्रेट या नॉर्मली भी वेवी है, तो हम नोज लेवल जितना फर्स्ट सेक्शन ले सकते हैं, तो वो एक ऐसे बैंग जैसा उनका हो जाएगा, लाइक वन साइड फ्रिंज। तो उससे उनका फोरहेड कवर हो जाएगा। मैम, जिनके हेयर कम हो और फेस वी छोटा हो, तो कौन सा हेयर कट होना चाहिए? उनके लिए फेस फ्रेमिंग हेयरकट इज वेरी गुड। फेस फ्रेमिंग हेयरकट से पूरा शेप जो हमारा फेस का है वो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर से ऐसे कवर होता है, तो योर फेस शेप आल्सो चेंजेस विद दैट। और उसमें कम बाल का भी कुछ दिक्कत नहीं होता, बिकॉज दिस वी हैव टू कीप आवर लेंथ डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर। अगर बाल कम है और
पतले हैं थोड़े तो हम लेंथ ज्यादा रख सकते हैं, सो दैट इज नो प्रॉब्लम। आप उनको फुल फेस फ्रेमिंग कर सकते हो। मैम लॉन्ग हेयर नहीं है तो कौन सा हेयर कट होना चाहिए? लॉन्ग हेयर नहीं है तो हम वी कैन डू ब्लंट लॉब, लाइक लॉन्ग बॉब कर सकते हैं। देन वी कैन डू क्लासिक राउंड। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर कट्स फॉर शॉर्ट हेयर एज वेल। मैम प्लीज बताइए कितने टाइम में ट्रिमिंग करवाने से हेयर ग्रोथ अच्छी होगी? 3 months मिनिमम। आफ्टर एवरी 3 months हमें ट्रिमिंग करवानी चाहिए, उससे डेफिनेटली हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव होता है। बिकॉज हमारे डेड एंड्स और स्प्लिट एंड्स निकल जाते हैं, तो इट रियली हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्थ हमारे हेयर का, इट इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ द हेयर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन अ हेल्दी ग्रोथ। मैम फोरहेड बड़ा हो तो फ्रेंच कट कर सकते हैं? अभी कट्स के सब अलग अलग नाम होते हैं, सो फ्रेंच कट यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज कि आप कौन सा कट मुझे बता रहे हो या पूछ रहे हो उसके लिए। फ्रेंच कट एज इन आप ऐसे स्ट्रेट बैंग्स बोल रहे हो या व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। आई एम ग्लैड कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आई होप यू आर लाइक द फाइनल लुक एज वेल। नाउ दिस आई एम जस्ट चेकिंग, दोनों साइड का लेवल कर रही हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ ब्लो ड्राई। मैम और एक क्वेश्चन है, क्या हम खुद से भी हेयर ट्रिम कर सकते हैं? दैट खुद से हेयर ट्रिम करना इज लाइक आपको रिस्क लेना आपके ऊपर है कि यू नो आपको वो रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। मेनी पीपल दे ट्राई टू डू इट, बट ज्यादातर मैंने देखा है कि उनका रिजल्ट अचीव नहीं होता है, इट गोज इनटू अ डिजास्टर। तो आई वुड रेकमेंड कि हमें खुद से ट्राई नहीं करनी चाहिए। So this is a complete haircut, but final look होगा after the point cutting and checking। ये उनकी लेंथ है, ये उनका वॉल्यूम because of the layers। And now before styling a hair, we have to use right products। प्रोडक्ट यूज करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना ब्लो ड्राई या हेयर कट करना। हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से टाइप का प्रोडक्ट कौन से क्लाइंट के हेयर के हिसाब से यूज करना है। तो अभी इनके लिए उनका प्रॉब्लम है, उनको ऑयली स्कैल्प है, ये उन्होंने मुझे पहले बताया था। तो उन्हें सिरम या हेवी सिरम, क्रीम बेस्ड सिरम हम यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज अ वाटर बेस्ड सिरम फॉर हर, जिससे कि उनको स्टिकी और ऑयली ना हो उनके बाल। मैम विच हेयर कट सूट्स ऑन लॉन्ग फेस? लॉन्ग फेस के लिए वी कैन गो इन फॉर लॉन्गर लेयर्स। लॉन्गर लेयर्स में वो अच्छा लगेगा और फ्रंट हम शॉर्टर फेस फ्रेमिंग कर सकते हैं। सो उनका वो लेंथ बैंग्स आने से या फ्रिंजेस आने से थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ टू पुट द प्रोडक्ट्स, हमें हेयर को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इतना दूर रख के वी जस्ट हैव टू स्प्रे रैंडमली। दिस इज अ वाटर बेस्ड स्प्रे सिरम दैट आई एम यूजिंग फॉर हर। और ऐसे ही दूर एक ही जगह पर क्लॉगिंग नहीं होना चाहिए। और लास्ट अपने हाथ में एक पंप करके इमल्सिफाई कंप्लीटली और जस्ट रन योर फिंगर्स थ्रू द हेयर, तो वो सब जगह इवनली स्प्रेड हो जाएगा। मैम आप बहुत लोगों को घर बैठे सीखने का मौका दे रहे हैं, थैंक यू मैम। थैंक यू कि आप लोग आए मुझे देखने के लिए। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। मैम हेयर फॉल के लिए क्या कर सकते हैं प्लीज बताइए ना। हेयर फॉल के लिए मार्केट
बहुत सी ट्रीटमेंट्स है, ऑर्गेनिक भी है, नॉन ऑर्गेनिक भी है, होम रेमेडीज भी है। तो अभी डिपेंड करता है कि क्लाइंट को कौन से रेंज में जाना है, बट ऑफ लेट ऑर्गेनिक हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स आर द बेस्ट इन द मार्केट। थैंक यू मैम। मैम आपने अभी कौन सी ब्रांड का सीरम यूज किया? ये बायोटॉप कंपनी का है। इट इज एन ऑर्गेनिक ब्रांड एंड दिस इज किनोवा बेस्ड। तो ये बालों को डैमेज, ऑयली, स्टिकी नहीं करता है। नाउ टू स्टार्ट योर ब्लो ड्राई, हमें सेक्शनिंग इस प्रकार से करनी है। पहले टॉप बॉक्स निकालना है, देन डिवाइड योर हेयर अगेन फ्रॉम द टॉप बॉक्स टिल द टॉप ऑफ द ईयर। सिमिलरली ये साइड पे भी वही करना है। मैम मेरे हेयर बहुत पतले हैं तो क्या करें? पतले हेयर के लिए आई वुड रेकमेंड कि हमें लेंथ नहीं रखना चाहिए। इट इज बेटर कि हमें शोल्डर लेंथ जितने ही हेयर कट करके रखने चाहिए, तो उससे हमारे बाल थोड़े फुलर और फेस भी अच्छा लगेगा। बिकॉज द लॉन्गर द हेयर, इफ दे आर वेरी फाइन, मतलब पतले और लिम्प है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। So shorter haircut goes better with thin and limp hair. Now to start with her blow dry, to add lot of volume, I am going to use is Velcro rollers. Blow dry करके हम इसमें रोल करके रखेंगे जब तक हम पीछे का फिनिश करेंगे, so that it will add lot of volume for her hair. मैम आपका सैलून किधर है? We are in Mumbai, Juhu. जुहू बीच के पास है। तो now blow dry start करने के लिए again we will divide the hair into two. And start with one section. To start with the blow dry, हमें सबसे पहले माइंड में रखना है कि हमें हमारी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम सिर्फ इधर ही ब्लो ड्राई करेंगे मिडलैंड टू एंड्स और हमारे रूट्स वीक रह जाएंगे, तो वो आपका ब्लो ड्राई 2 घंटे भी नहीं टिकेगा। इधर वेव्स और इधर स्ट्रेट इज नॉट गोइंग टू डू जस्टिस। हमें फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज वी हैव टू ब्लो ड्राई आवर रूट्स वेल। उधर का डैम्पनेस और कर्ल्स पहले निकालने हैं हमें। रूट्स पहले स्ट्रॉन्ग करने हैं। 4-5 टाइम्स हमें सिर्फ रूट्स को ही करना है, फिर मिडलैंड एंड देन एंड्स को भी हमें सिक्योर करना है। एंड्स फ्रिजी नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज आपका लुक नहीं आएगा। मैम आप कौन सा ब्लो ड्रायर यूज कर रहे हैं? ड्रायर मैं टॉरलाइन का यूज कर रही हूँ, विच इज वेरी, इट इज एक्चुअली ये बहुत स्टर्डी और हैवी है, बट सैलून यूज के लिए ये बेस्ट है। जो डेलिकेट ड्रायर्स आते हैं वो सैलून यूज के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उससे हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। अभी we are going to put in Velcro rollers so that we get lot of volume.
एंड्स को सिक्योर करना है 90 डिग्री अप एंड रोल इट डाउन। मैम फ्रंट हेयर फ्लैट हो और फॉरहेड बड़ा हो तो क्या करे? फेस फ्रेमिंग कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। एब्सोल्युटली फेस फ्रेमिंग करने से वो फ्रंट फेस को शेप भी अच्छा देगा एंड फोरहेड भी कवर करेगा अगर हमारा सेक्शन आगे से हम छोटा लेंगे। द फर्स्ट लेयर हैज टू बी शॉर्ट फोरहेड कवर करने के लिए। now we have secured this section। अभी हम ये दूसरा सेक्शन in the similar manner। मैम आप ड्रायर का नाम फिर से बताएंगे प्लीज? टॉरलेन कंपनी का है ये ड्रायर। टॉरलेन TORLEN। अगेन पुल 90 डिग्रीज अप। एंड्स को सिक्योर करना है। ये टाइट होना चाहिए सो दैट बिल्कुल फ्रिजीनेस न रहे। मैम स्टोबा का ड्रायर कैसा है? दैट इज ऑल्सो नाइस। आइकॉनिक इज ऑल्सो नाइस। आइकॉनिक भी यूज कर सकते हैं। और कौन सा सीरम बाल के लिए अच्छा होता है? सीरम डिपेंड्स ऑन द हेयर टाइप। अगर इनके हेयर टाइप के लिए जैसे मैंने बताया क्रीमी सीरम यूज नहीं कर सकते। वी ओनली नीड वाटर बेस्ड। ऑयली सीरम भी उनके लिए इज अ कंप्लीट नो नो। तो वैसे ही कर्ली हेयर के लिए हमें क्रीमी या ऑयली सीरम यूज करना है तो जिससे उनका फ्रिज कंट्रोल में आए। और कर्ली हेयर के लिए भी अलग टाइप के सीरम्स आते हैं टू एनहांस योर कर्ल्स, जिससे आपके कर्ल्स नेचुरली अच्छे लगते हैं। सो सीरम टोटली डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप, कौन सा हमें सिलेक्ट करना है। फिर तो आगे का गले में रोना लगेगा। मैम सॉफ्ट हेयर के ऊपर ब्लो ड्राई करते हैं तो कर्ल अच्छे नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें राइट प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। कर्ल्स चाहिए तो हमें कर्लिंग क्रीम या फिर टोंग या फिर मूज या फिर स्प्रे वो यूज करके ही हमें बेवल ब्लो ड्राई या कर्ल ब्लो ड्राई या आउट कर्ल ब्लो ड्राई करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा।
मैम एक लगाने से बाल की ग्रोथ अच्छी होती है? Absolutely. Egg is a very good natural conditioner. थैंक यू मैम। और अगर ड्राई हेयर है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ड्राई हेयर के लिए हम होम रेमेडीज भी कर सकते हैं, अदरवाइज सलोन में भी देयर आर लाइक लॉट ऑफ डीप कंडीशनिंग, हेयर स्पास एंड ऑर्गेनिक हेयर ट्रीटमेंट्स जिससे ड्राइनेस और वो डेफिनेटली कम होती है। अभी जैसे पहले किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सॉफ्ट हेयर है तो उसमें कर्ल्स नहीं रहते, सो फॉर दैट वी आर, इनके भी सॉफ्ट और सिल्की हेयर है, तो वी आर जस्ट गोना ट्राई एंड अचीव अ बेवल ब्लो ड्राई लाइक अ कर्ल काइंड ऑफ अ थिंग, एक फ्लिप आउट करने के लिए। सो वी आर गोइंग टू यूज अ कंस्ट्रक्टर, इससे जो हम शेप बाल को देना चाहेंगे वो रहेगा। मैम सीरम ब्लो ड्राई के पहले यूज करना चाहिए या बाद में? पहले, क्योंकि अगर वाटर बेस्ड सीरम हम ब्लो ड्राई के बाद यूज करेंगे तो वो वाटर कंटेंट से हमारा ब्लो ड्राई का इफेक्ट पूरा निकल जाएगा। Now again divide the hair into two sections for the back blow dry. ये भी डिपेंड करता है थिकनेस, अगर बाल बहुत ज्यादा थिक है तो हम 3 सेक्शन में भी करेंगे इसको, अदरवाइज फाइन है तो 2 सेक्शन। मैम आपके सैलून में हेयर फॉल ट्रीटमेंट होता है क्या? हमारे यहाँ हेयर फॉल, डैंड्रफ, प्रोटीन, ऑर्गेनिक सब टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं। मेनली ज्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी वेराइटीज है हेयर स्पा और डीप कंडीशनिंग के लिए। अभी ये हम फर्स्ट सेक्शन बेवल ब्लो ड्राई का करेंगे। डिवाइड द हेयर इनटू 2। रूट्स को सिक्योर करना है पहले, मिनिमम 3 to 4 टाइम्स हमें रूट्स को पहले स्ट्रेटन और ड्राई करना है। Then we will go down midland, then roots to midland, और लास्ट में we will secure the ends। ये हो गया हमारा स्ट्रेट इन ब्लो ड्राई। अभी इसको बेवल लुक करने के लिए वो छोटा सा हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथों में जो स्वेट है वो बाल पे नहीं लगना चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज वाइप आवर स्वेट ऑफ, क्लीन हाथों से ही बाल को टच करना है। मैम और कितना टाइम लगेगा फाइनल रिजल्ट के लिए? ब्लो ड्राई के बाद वी विल गेट अ फाइनल रिजल्ट। थैंक यू मैम। मैम आपका सैलून का एड्रेस बताएंगे प्लीज? सब डिटेल्स अनुराग जी के पास है, तो गेट इन टच विद अनुराग मेकअप मंत्रा, उधर से आपको हमारे सब डिटेल्स मिल जाएंगे।
मैम 12th क्लास की स्टूडेंट है, उसके हेयर काफ़ी रफ, कर्ली एंड फ्लफी है, तो प्लीज़ बताइए उसको क्या ट्रीटमेंट दे। उन 12th क्लास के लिए उनके लिए हमें ऑर्गेनिक कुछ करना चाहिए, बिकॉज शी इज स्टिल अ स्टूडेंट, वो एक टीनेजर है, तो हमें बहुत हैवी केमिकल्स वाला उनके बालों पे यूज नहीं करना है। सो फॉर दैट आई वुड रेकमेंड ऑर्गेनिक रेंज में हमें कोई डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट उनको जैसी हमारे यहाँ भी होती है वैसे कोई एक ऑर्गेनिक हेयर स्पा करवाना चाहिए रेगुलरली बेसिस पर। और घर पे उसी रेंज का शैम्पू कंडीशनर या कंटिन्यूस लाइक ऑयलिंग या कर्ड लगाना, उससे भी बहुत हद तक बाल सॉफ्ट और मैनेजेबल होंगे। एंड ऑफ कोर्स यूज द राइट प्रोडक्ट्स। घर पे भी शैम्पू, कंडीशनर और सिरम ये तीनों यूज करना ही है। Also, I would like to mention one thing. For hair, maintaining your hair and the health of your hair, जैसे shampoo is very important to clean your hair and to clean your scalp, to keep your hair clean. वैसे ही conditioner is utmost important. उससे भी जैसे how अपनी body के लिए food is important, like that conditioner is the food for your hair. शैम्पू करने से हमारे बाल के पूरे क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, इसीलिए उसमें से सब डर्ट, ऑयल, ग्रीस निकल जाता है। तो उन क्यूटिकल्स को बंद करने के लिए वी नीड टू यूज एज अ कंडीशनर। कंडीशनर डेली बेसिस पे हमें एवरी टाइम भी शैम्पू और है वी हैव टू यूज अ कंडीशनर एंड टॉवल ड्राई करके एनी सिरम एज पर योर हेयर टाइप इज व्हाट आई रेकमेंड। मैम प्लीज़ बेबी हेयर के लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए। बेबी हेयर बेबी हेयर के लिए अगर फ्रंट हेयर लाइन की आप बात कर रहे हो, लाइक मेनी पीपल हैव बेबी हेयर ऑल अराउंड हियर और वो फ्रिजी है और वो ऐसे कर्ल अप हो जाते हैं, तो ऑफ लेट व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर माय क्लाइंट्स, हम लोग उसको पार्शियल सिस्टीन बोलते हैं। तो पार्शियल सिस्टीन इज लाइक 2 इंचेस फ्रंट का हम उतना पार्शियल सिस्टीन कर देते हैं उनको, लाइक अ क्यूओडी और एन एडवांस सिस्टीन, जिससे वो बेबी हेयर, कर्ली, फ्रिजी सब मैनेज हो जाते हैं एंड blends in very naturally with your existing hair texture. So you can try doing that. थैंक यू मैम। मैम कौन सी कंपनी का शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम यूज़ करना चाहिए, बेस्ट होगा मीन्स? बेस्ट तो अभी फिलहाल वही जो सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री अभी मार्केट में मिल रहे हैं, दोज आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो वो एज पर योर हेयर टाइप के, आपके कलर्ड बाल है, डैमेज्ड हेयर है और नेचुरल वर्जिन हेयर है, तो वो हिसाब से कैटेगरी में आपको शैम्पू, कंडीशनर और उसका सिरम यूज करना है कि कौन सा क्रीम बेस्ड, ऑयल बेस्ड या वाटर बेस्ड। सो दैट आई डू नॉट सी योर हेयर, मैं आपको कोई पर्टिकुलर चीज रेकमेंड नहीं कर सकती। आई नीड टू सी योर हेयर, डू द कंसल्टेशन, देन आई कैन रेकमेंड पर्टिकुलर नेम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। Ma'am, I get dandruff after using conditioner. How can I solve it? That is a myth actually कि conditioner use करने से dandruff होता है, but at the same time maybe you are not using the conditioner in the right manner. Conditioner is only meant for your hair, like mid-length to end. उसे हमें scalp और roots के पास नहीं लगाना है. Shampoo is only for your scalp. And conditioner is only for the length of your hair. तो maybe आप कंडीशनर स्कैल्प या रूट्स के पास लगा रहे हो और वो अच्छे से रिंस आउट नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको डैंड्रफ रीअकरिंग हो जाता है मे बी आफ्टर एवरी कंडीशनर। सो ट्राई डूइंग दैट।
Try putting conditioner only on your mid length and ends and avoid it from your scalp. शायद उससे आपका कम हो जाएगा. मैम मेरे वेवी हेयर है और रफ भी है, तो कौन सा हेयर स्पा करना चाहिए? कलर्ड हेयर है आपके कि इट इज जस्ट नॉर्मली ड्राई है और रफ है अभी, कि बिकॉज ऑफ द कलर इट इज बिकम लाइक दिस. अगर कलर्ड हेयर है तो कलर्ड शैम्पू एक आता है विच इज ऑल्सो मेंट फॉर वेवी एंड कर्ली हेयर. ऑर्गेनिक आता है, तो यू कैन यूज दैट. बहुत से कंपनीज में अभी मिलता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो आप अपने हिसाब से उसमें से सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं. बट यूज अ हेवी कंडीशनर आपको हेवी यूज करना है टू मैनेज योर ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस. नाउ वी आर स्लोली ओपनिंग द वेलक्रो रोलर्स. ये खोलने के टाइम हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्लाइंट के बाल खींचने, बिकॉज इसमें जो छोटे बेबी है दे आर स्टक टू द वेलक्रो. तो हमें ध्यान रखना है कि वी सिक्योर द रूट्स बिफोर पुलिंग दिस आउट. Similarly, I'm doing on the other side. Secure the roots and slowly roll out the rollers. मैम मेहंदी हेयर में लगानी चाहिए? Absolutely no. मेहंदी is like a coating for your hair. और वो एक बार कोटिंग लग गया तो उसके बाद आपके बाल पे कोई कलर, कोई स्पा, कोई डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, इट विल नॉट वर्क. वो निकलते 3-4 साल लग जाते हैं मेहंदी का कोटिंग. सो आई वुड नेवर रेकमेंड मेहंदी और हेना फॉर एनीबडीज हेयर. वो हाथों के लिए ठीक है, हाथों पे ही अच्छी लगेगी. मैम हेयर ब्रेकेज के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? हेयर ब्रेकेज का रीजन है कि आपके हेयर दे आर लिटिल ब्रिटल. वो प्रोन टू ब्रेकेज है बिकॉज उसको इतना फूड या कंडीशनिंग जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है. तो मे भी आपको अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने चाहिए सो दैट आपके हेयर थोड़े हेल्दी और एज पर योर हेयर टाइप आपको यूज करना चाहिए उसको. अदरवाइज यू गेट एंटी ब्रेकेज शैम्पू एंड कंडीशनर ऑल्सो इन द मार्केट. लॉरियल का भी मिलता है, उसका भी एक स्पा होता है लॉरियल में विच इज कॉल्ड एज अ पावर मिक्स मेनली फॉर एंटी ब्रेकेज. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. वो एक पर्सनलाइज टाइप का स्पा होता है. So as per your hair type हम लोग प्रोडक्ट मिक्स करते हैं and then we do it for you. ये देखिए रोलर्स का लुक हमारा. See the volume and the movement. Still this is not your finished look. Still we have to check and do the point cutting and that will be the finished look. Like it? Come on. Checking hardly takes 5 to 10 minutes. Checking start करने से पहले we have to begin from the face framing layers. पहले हम उसे चेक करेंगे, उसके बाद we will check your main hair cut. Again, to check your face framing, turn the client towards you.
फॉर अभी चेकिंग करने के लिए हमें एक एक सेक्शन करने की जरूरत नहीं है. वी कैन टेक द ऑल द 4 sections टुगेदर. comb it well and just जो एक्सेस हेयर आपको दिख रहे हैं उसको पॉइंट कटिंग के साथ निकाल सकते हैं. ये जो मैं कर रही हूँ दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट कटिंग टेक्निक. इससे हमारे जो लेयर्स हैं आप देख रहे हैं वो मोर प्रोमिनेंट और शार्प दिखेंगे. सो पॉइंट कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लुक और एनी हेयर कट. Similarly on the other side. मैम थैंक यू सो मच इतना अच्छी तरह से सिखाने के लिए. My pleasure. हमें क्लाइंट का हेड स्ट्रेट करना है. अगर आपको लग रहा है वो टिल्ट कर रहे हैं तो वेरी स्लोली एंड स्मूथली हमें उनको ठीक करना है. अदरवाइज आपका ये चेकिंग ऑफ चला जाएगा. मैम which serum is better if hair gets knots? Then you need to use little cream based or oil based serum. तो उससे नॉटेड कम होएगा बाल. मैम कर्ली हेयर को कैसे शाइनी बताएंगे मीन्स? कर्ली हेयर के लिए भी सिरम्स आते हैं. तो अगर हम वो राइट प्रोडक्ट्स यूज करेंगे कर्ली हेयर के लिए टू एनहांस योर कर्ल्स. ये देखिए, सॉरी आई जस्ट कंटिन्यू विद दैट सिरम बट सी द फेस फ्रेमिंग लुक फ्रॉम द साइड. आई होप इट इज विजिबल. एंड पॉइंट कटिंग से हमारे ये कितने शार्प और प्रोमिनेंट हो गए लेयर्स. वाओ मैम. Yeah, so this is the face framing look that we were trying to achieve. अभी हम पीछे के लेयर्स हमारे चेक और हेयर कट पे पॉइंट कट करेंगे. Now this checking and point cutting, every hairdresser का अपना personalized रहता है. This we cannot teach anyone the checking or the point cutting technique. वो हमें अपने हिसाब से जैसे जैसे हम करते जाएंगे वो डेवलप होता जाएगा. बट आई वुड लाइक टू से जितना डीपर पॉइंट कट करोगे उतने डीपर्स आपके लेयर्स विजिबल होंगे एंड दे विल बी मोर सॉफ्टर. वी डू नॉट वांट ऐसे स्टार्क लाइन लेयर्स नहीं चाहिए हमें सॉफ्ट लुकिंग लेयर्स चाहिए. मैम कर्ली हेयर के लिए क्या हम पॉइंट कटिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं. बट कर्ली हेयर में हमें ब्लो ड्राई करके उसे स्ट्रेट नहीं करना है. हमें स्क्रंच ड्राई करना है और चेकिंग के साथ ही पॉइंट कट करना है. उसके लिए सेपरेट चेकिंग और पॉइंट कट नहीं होता. मैम मेरा हेयर बहुत हेयर फॉल्स हो रहा है तो क्या करें ताकि हेयर फॉल कम हो जाए? हेयर फॉल के लिए जैसे मैंने पहले बताया बहुत से हेयर फॉल के ट्रीटमेंट्स होते हैं मार्केट में अभी, ऑर्गेनिक और लॉरियल के या वेला के या किसी के भी. बट आप घर पे यू कैन स्टार्ट यूजिंग एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर. तो उससे थोड़ा टिल यू डोंट गेट आउट टू डू दैट आप वो यूज करके उसे थोड़ा कम कर सकते हैं. मैम सिस्टीन बेटर और केराटिन? आई डू नॉट, मैं पर्सनली अपने सैलून में केराटिन नहीं करती हूँ. आई डू नॉट सपोर्ट केराटिन बिकॉज उससे बहुत कैंसरियस फ्यूम्स निकलते हैं.
जो हमारे क्लाइंट के लिए और हमारे खुद के लिए इट इज वेरी हार्मफुल. तो आई डू नॉट डू केराटिन, आई ओनली डू सिस्टीन एंड एडवांस सिस्टीन एंड स्ट्रेटनिंग. जो सेफ है हमारे क्लाइंट के लिए हमें वही यूज करना है. मैम ड्राई, फ्रिजी और रफ हेयर के लिए क्या करें? स्ट्रॉन्गर सिरम और स्ट्रॉन्गर कंडीशनर यूज करें उसके लिए. लाइक अ वेरी हैवी कंडीशनर एंड अ ऑयल बेस्ड सिरम. लाउडली. So this is a finished look. See the movement and the volume in her hair. और फ्रंट से देखे तो that's the finale look. The final point cutting, checking, blow dry, products, everything, and this is the final look of a client. I hope आप लोगों को ये अच्छा लगा. और कुछ भी क्वेश्चंस हो या एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री पूछने के लिए. आई एम रेडी टू आंसर एंड ऑल क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड रेक्टिफाई एनीथिंग. थैंक यू सो मच. Ma'am, Thank you so much. मैम ग्रेट जॉब, ऑसम. थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड आप सबको अच्छा लगा. थैंक यू मैम. बाय एवरीवन. बाय. Come. Do you like it? अच्छा लगा? Your length and